Who doesn't like good food? Dining has become quite the lifestyle, and in a way, we're all trying to make money so that we can earn a spot at that fancy table. Hi, I'm Rohini Ramanathan, your host, and some of you might know me as a radio presenter or an MC. Being in the profession that I am takes me to some of the nicest places. But kabhi na, ऐसा लगता है, what is the point of it all if I can't share it with my near and dear ones? Which is why the first thing that I did, as soon as I got a break this year, was take my mom out for a lavish lunch over the weekend and have the kind of food that we were craving. The fact that I'm able to share my experiences and give my mother a taste of my own travels is, of course, extremely satisfying. After all, we do it for their smiles. Hi there. Welcome to SBI Life, Apne Liye, Apno Ke Liye, Real Life Podcast. I've always found that real stories are more inspiring than fiction. And on this podcast, we're going to meet some incredible people who've led successful lives and use that to uplift their family and friends. ऐसे लोग जो अपने सपनों को पूरा करते करते अपनों के सपनों को भी पूरा करते हैं. This, dear listeners, is not fiction. These are real stories from real Bharat. Life में ना कुछ चीजें होती हैं जो हम अपने लिए करते हैं. अपने passions, अपने interests. But at the same time, you've also got to keep in mind those around you. And that is exactly what our guest has done. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही special इंसान से. Not only has he built a massive social media following for himself, but he's also ensured कि उनका परिवार भी उन जितना ही popular है. We've seen him sitting in a car for 24 hours or spending an entire day in a pool. एक बार तो उन्होंने कसम खा ली कि पूरे दिन अपनी फैमिली से सिर्फ अंग्रेजी में ही बात कराएंगे या बात करेंगे उनके साथ. Here is a man who loves challenges, joining us all the way from Delhi, Ramneek Singh, जो अपने परिवार के साथ has combined followings of 40 million users on social media platforms. Let that number sink in, दोस्तों. 40 million users, which means 4 करोड़ लोग. अब 4 करोड़ की जनता लेकर जो आदमी बैठे हैं, उन्हीं से हाय हेलो करेंगे. रमनीक जी, वेलकम टू द शो. कैसे हैं आप? Thank you so much for this wonderful introduction. मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे and I'm really happy to be here and looking forward to have a wonderful chat with you guys. थैंक यू सो मच. ओरिजिन स्टोरी सबको पसंद है कि इस सुपर हीरो की इजाद जो है वो कहाँ से हुआ. तो मेरा अगला सवाल यही होगा आपके लिए. वी नो द सिंह फैमिली बाय इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पोस्ट. वी नो दैट यू गाइज लव टू हैव फन टुगेदर एंड आर अ वेरी क्लोज लेट फैमिली. टच वुड. But tell us something about your past. Like, what were you doing before you started making these videos? यानी कि रमनीक सिंह बनने से पहले क्या करते थे? So basically we are a joint family. So we have like one big happy family. तो हम लोगों का family business है. We are Maruti authorized dealers, like in the name of Magic. So we are almost one of the top dealers in India. So like we have about 7-8 showrooms and multiple workshops, and we sell about 1,200 cars, 1,500 people working in the company. So I was completely involved in that business. So suddenly after the blue moon, my passion was like I wanted to create a name for myself. That was a family business. Yes, I love that business. But वो तो मैं कर ही रहा था, like 15 साल I have done that business. But I wanted to do something on my own. So I started this kind of a second-hand mobile resale business to create a brand out of that, So I tried that. I did a lot of good work on that, for 3-4 years. I was trying to build a brand out of that because second-hand mobiles के अंदर भी ऐसा कोई trustable brand नहीं है. That was a startup. And then I got into a chain of like waffles, like opened like 9 stores in Delhi in the name of MWM, Me Waffle and More. So that was also a passion. Somehow I'm just trying to tell you that I wanted to create a brand out of me, create a name for me, that this was created by me, this is me, I have done from scratch. So but भगवान ने क्या किया कि ये दोनों तो चलो स्टार्टअप मेरे थे ही थे, बट मेरे को ब्रांड बनाना था एक जैसे किसी नाम को. तो भगवान ने क्या किया कि मेरे नाम को ही ब्रांड बना दिया. तो मैंने कहा यार इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती. तो सडनली मतलब पता भी नहीं चला कैसे हो गया, कहाँ हो गया. And now that everybody is known from my name. मतलब Ramneek Singh 1313 के पापा, Ramneek Singh 1313 के family, everything. So that's really amazing. Yeah? मतलब that's unbelievable, and
आई कांट बिलीव इट स्टिल नाउ। और ये पता भी नहीं चला हुआ कैसे, वी वर जस्ट सिटिंग लाइक दिस, मेरे को कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज अबाउट दिस कंटेंट क्रिएशन। आई हैव नो हिस्ट्री कि मैंने बहुत कुछ लिखा है, एडिट किया है, जीरो, आज तक एक भी वीडियो एडिट नहीं किया था। सडनली बैठे थे तो somebody told me कि यार ये टिकटॉक है कुछ, भाई ये देखो, ये आजकल बहुत चल रहा है, इट्स वेरी फन, मजा आता है। मैंने दो चार वीडियोस बच्चों के साथ बनाए, तो ठीक है यार, चलो मजा आएगा। I'm so excited. I'm so intrigued to talk to you about your, family background. जो आपने कहा कार डीलरशिप, उसके बाद वॉफल का बिजनेस। लेकिन जब कंटेंट क्रिएशन की बात आती है, जब हम आपने कहा कि बैठे बैठे हो गया, लेकिन कोई इंस्पिरेशंस थे आपके, किसी को फॉलो करते हैं, किसी का स्टाइल या किसी के कंटेंट बनाने का जो अंदाज होता है, डिड यू एवर हैव एनी रोल मॉडल्स इवन टुडे? इंस्पिरेशन तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया इज कम्प्लीटली इंस्पिरेशन, आप देखते हो वीडियो, एंड देन द प्रॉब्लम इज हम लोगों का कंटेंट बहुत क्लीन रहता है, हम लोगों का कंटेंट फैमिली कंटेंट रहता है। तो वट एवर कंटेंट वी सी, वी इनटेक, एंड देन वी थिंक दैट यार इसको हम फैमिली कंटेंट कैसे बनाए, इसको अपनी फैमिली के अंदर कैसे लेके आए, तो दैट कम्प्लीटली इज आवर आइडिया। और फिर हम उसको सोचते हैं, करते हैं कि यार इसको ऐसा करना चाहिए तो ऐसा होगा। उसके लिए नाउ वी हैव अ स्क्रिप्ट राइटर, नाउ वी हैव एडिटिंग टीम, वी हैव अ पोस्टिंग गाय, नाउ वी 5 people are working with us. So initially I used to do it everything, shoot in the day, in the night 2-3 hours I used to edit the video, और सुबह सुबह फिर अपलोड करते थे उसको। तो सब कुछ खुद ही किया है, तो मतलब धीरे धीरे सीख गए। बहुत ही बढ़िया। इट्स सो इंस्पायरिंग, आई मस्ट टेल यू दैट। व्हाट इज आल्सो इंटरेस्टिंग इज दैट जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में एक मोड़ या रुख जो है वो उनका बदल जाता है, तो उन्हें शायद उतना कॉन्फिडेंस हो ना हो, बाकी के लोगों में हलचल मच जाती है। लोग कहते हैं यार, हाउ कैन यू डू दिस फुल टाइम, हाउ कैन यू बी अ कंटेंट क्रिएटर फुल टाइम, बिकॉज ये जर्नी आपकी ओवरनाइट तो सक्सेस नहीं बने हैं, साल लगे हैं, ओके, सालों लगे हैं फॉर यू टू बिल्ड योर ऑडियंस। So when you told your friends or your family, how was that dive? What were their reactions like? And also, आपके खुद के emotions क्या थे उस दौर में? आपको लगा था कि ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? Talk to me about that. Yeah, it's a very interesting and very touching question. So it is difficult यार, मतलब obviously especially for my background kind of a guy, जिसको मतलब by God's grace कुछ भी नहीं करना है इतना कि there is no need to struggle. I have a well set family business. तो मुझे तो कुछ जरूरत ही नहीं है कि कुछ मेहनत मैं करूँ, कुछ करना ही नहीं है, ऑफिस जाना है, शाम को घर आ जाना है, वहां पर अपना छोटा मोटा जो किया किया। तो इट वाज कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ माय पैशन, जो कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ माय एनर्जी एंड विल, मुझे कुछ करना है बॉस, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपना कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि पीपल विल से कि यार ये ऐसा है, वहां पे जाता है आ जाता है, व्हाट एवरीबॉडी डज इट, जो भी अमीर फैमिलीज के बच्चे हैं। तो मेरे को शुरू से ही था कि यार नहीं, मैंने तो स्ट्रगल, ठीक है स्ट्रगल से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेहनत करनी है तो करनी है। एंड बिलीव मी, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। कंटेंट क्रिएशन इतना इजी नहीं है, अब बहुत डिफिकल्ट जॉब है, और स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच और टू रीच है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत वर्किंग आवर्स लगे हैं, दिन रात वाली हमने शूट करी है। और स्पेशली हमारी फैमिली, मतलब वी हैव अ फैमिली, इट्स नॉट दैट कि वी आर जस्ट छड़ा छड़ा, मतलब कि सिंगल, जिसको मतलब कुछ भी कहीं पे भी चले जाओ कोई पूछने वाला नहीं है। वी हैव टू आंसर एवरीथिंग, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब आ रहे हो, और सबसे बड़ी बात है वी हैव किड्स। तो बच्चों का सारा स्कूल का, बच्चों का सारा ट्यूशंस, पढ़ाई, उनकी स्पोर्ट्स, बाय गॉड्स ग्रेस माय ऑल 3 kids आर इन स्कूल्स, बास्केटबॉल टीम, तो उनकी बास्केटबॉल प्रैक्टिस, उनकी स्विमिंग प्रैक्टिस, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। एंड देन वी हैव टू टेक टाइम फॉर दिस कंटेंट क्रिएशन, जिसके अंदर क्या रहता है कि हमारा डेली यूट्यूब पे एक लॉन्ग वीडियो जाता है, अब डेली यूट्यूब पे 3 शॉर्ट वीडियोस जाते हैं, विच इज 1 minute। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट है। जहां तक रही बात फैमिली एंड फ्रेंड्स की, तो इतना डिफिकल्ट है। और एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये है इस लाइन की कि नोबडी इज अवेयर। अब आपने अगर बिजनेस करना है, सबको पता है इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसका कैसे होगा, क्या होगा। ये इतना नया था कंटेंट क्रिएशन उस टाइम पे, देयर वाज नो स्टार्स, देयर वाज नो सोशल मीडिया स्टार्स, देयर वर ईदर ओनली मूवी स्टार्स और देयर वर ईदर ओनली टीवी स्टार्स। थर्ड कैटेगरी तो ये टिकटॉक लेकर आया, टिकटॉक ने सबको स्टार बना दिया, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली दिस कंटिन्यूड इन यूट्यूब, कंटिन्यूड इन दिस इंस्टाग्राम, रील्स एंड एवरीवेयर। तो इतना न्यू था ये इंडस्ट्री, तो किसी को क्या ही बोलो, हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, हमारा क्या है काम इससे, वेदर वी विल बी एबल टू अर्न समथिंग और नॉट।
So initially, I was only doing for my passion. I was not full time. Once thing came, started growing. At a certain level, your content gets monetized. तो फिर जब वो monetize हो गया, तो उससे Yes. भी पैसा earn करना शुरू किया. तो फिर समझ में आया कि यार इसके अंदर तो बहुत स्कोप है भाई, बहुत स्कोप है. तो देन आई गॉट डीप इनटू इट. फिर मैंने यूट्यूब शुरू किया. ऑब्वियसली टिकटॉक वाज नॉट पेइंग एनीथिंग. ओनली जो हम प्रमोशंस करते थे, वी वर अर्निंग थ्रू दैट, व्हिच वाज नॉट मच कि मैं बिजनेस छोड़ के सब इसी में लग जाऊं. तो मैं सबको ये एडवाइस Yeah. करता हूँ कि टिल द टाइम जितनी भी आपकी सैलरी है, उससे ज्यादा अगर आप इससे कंटेंट क्रिएशन से कम नहीं कमाते हो, तब तक सैलरी जॉब को मत छोड़ो. जो लोग आपको फॉलो करते हैं, we see in your videos you have your children, who are in the videos with you. And अगर आप सिर्फ एक पेरेंट की तरह बात करें, तो पेरेंट्स का आजकल बहुत हो गया है कि स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए बच्चों को, सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए. When your kids are part of the creation process and they are YouTube stars, how does that play out in your family? How does that conversation even happen? क्योंकि जब आप बोलते हो YouTube पे मत इतना टाइम स्पेंड करो, बच्चे मुड़ के बोल सकते हैं पापा आप भी तो हो. तो इसका क्या जवाब देंगे? Any very true, yeah. Kids are not part; they are the stars of our family. Because हमारी 95% Yes. audience kids ही हैं, families हैं, मतलब family audience है हमारी. So frankly speaking, all three kids, they are not on active on social media. Nobody believes that, but they are actually not very active. They don't know which video is uploading today. They don't know which video is doing well, which video is not doing well. But yes, they do watch YouTube or whatever they want to as a time pass. We have put certain limits. Frankly, we don't have any TV in our home. What we believe as a family, Oh. yeah, what we believe as a family, that kids, बच्चों को अगर आपको इन सब चीजों से अलग रखना है, तो उनको बिजी रखना है. अगर प्रॉब्लम्स क्या देखी है मैंने भी, और बाकी जो ऑडियंस है हमारी, पेरेंट्स, वो भी आई थिंक दे विल एग्री विद मी. मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स सोशल मीडिया या फोन या टीवी पे बच्चों को ज्यादा टाइम पास करवाते हैं, बिकॉज उनके पास कुछ और करने को नहीं है, या फिर पेरेंट्स कहीं पे बिजी है. हमने क्या इंश्योर किया है, वी हैव सेट पैटर्न फॉर आवर किड्स. जैसे फॉर एग्जांपल आई जस्ट टेल यू इन अ फ्यू वर्ड्स कि नॉर्मल डेज में रूटीन क्या रहता है हमारे बच्चों का. So when they obviously they get up at 6 o'clock and get ready, go to school, come back at 2 o'clock, have their lunch, then 3 o'clock is their tuition, 3 to 4:30, and then after 4:30, one day in a week, 3 days they go for a basketball session for training. We have a lot of cousins in our house, so we live a joint family. तो वहाँ चले गए, कभी वो ऊपर आ जाते हैं, कभी ये लोग नीचे चले जाते हैं. तो that's how the normal day is. अब बताओ इसमें टाइम ही कहाँ है कि वो YouTube देखें या Instagram देखें या Facebook देखें. तो उनको आउटडोर Mhm. एक्टिविटीज में बिजी रख दिया, होमवर्क में बिजी रख दिया, और जो थोड़ा बहुत हम हफ्ते में 3 दिन शूट करते हैं, लाइक 5:30 to 7:30, 2 आवर्स का हफ्ते में 2 से 3 दिन हम शूट टाइम रखते हैं. तो वो जो थोड़ा बहुत, जो जिस दिन वो बास्केटबॉल नहीं जाते हैं, वी टेंड टू शूट, तो हम उस दिन शूट कर लेते हैं 2 घंटे. और शूट के अंदर भी फन चल रहा है, कभी वो मस्ती चल रही है, कभी छोटे मोटे इनके आपस में झगड़े चलते रहते हैं. तो वो कहीं ना कहीं मस्ती का टाइम वो हो जाता है, वहां पर इंजॉयमेंट चल रही है. और उसके बाद अब टाइम, इन सब चीजों के लिए टाइम भी तो हो कि अब वो इंस्टाग्राम देखें, यूट्यूब, जहां उनको लगता है, वो कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लिया, या कभी कोई उनके फेवरेट Mhm. यूट्यूबर्स है उनका कंटेंट देख लिया. सो वो सब उसमें टाइम निकल जाता है. तो मेजरली दे आर नॉट वेरी एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट आई विल स्टिल गिव एडवाइस टू आवर ऑडियंस कि बेटर यही है कि हम अपने बच्चे को किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रखें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कुछ भी हो जो उसको पसंद हो. तो वो उसके अंदर क्या रहेगा कि उसकी एनर्जीज राइट डायरेक्शन में जाएंगी, ना कि ये जो टाइम किल करने वाली चीजें हैं उसके अंदर उसकी एनर्जीज जाए. तो कुछ ना कुछ सीखोगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, जिसका 100% कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा. अगर आप डांस सीख रहे हो तो हो सकता है स्कूल में आप डांस कंपटीशन में पार्ट ले लो. बास्केटबॉल जैसे सीख रहे हैं, तो माय ऑल 3 kids आर इन स्कूल्स बास्केटबॉल टीम. माय एल्डर डॉटर just Yes. went to Chandigarh for 4 days alone with their basketball team, और उसका ऑल इंडिया लेवल पे स्कूल्स का कंपटीशन था. शी पार्टिसिपेटेड इन दैट. सो इससे एक्सपीरियंस मिल रहा है, उनकी ग्रोथ हो रही है, और फालतू की चीजों से दिमाग हटके एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव वे में उनकी एनर्जीज जा रही है. That is so wonderful to hear, especially क्योंकि हम
जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, हम इन सबको जानते हैं। बिकॉज़ एक रिश्ता जो है वो बन जाता है उन लोगों को देखते-देखते। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लगता तो है कि परिवार जो है साथ में जो काम करता है, वो साथ में समय बिता रहा है। आई मीन यूड लाइक टू अस्यूम दैट जस्ट बिकॉज़ द फैमिली इज़ वर्किंग टुगेदर, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। बट जो दिखता है उसके पीछे भी वक़्त होना ज़रूरी है। सो डू यू कंसिडर दैट योर फैमिली टाइम और व्हाट इज़ इट दैट द सिंह फैमिली डज़ टू एंश्योर दैट यू गेट फैमिली टाइम इन क्वोट्स या क्वालिटी फैमिली टाइम? बताइए। नहीं, both things run side by side. Obviously, when we are shooting, Mhm. we work as a professional. So it is not that कि we are completely enjoying our shooting time like 2 hours की भैया हंसी खेली चल रहा है तो फिर काम कैसे होगा? This is our work. Creating content, we are working as a professional. This is our full time job. तो वो तो फन बीच बीच में जहाँ अब जैसे हम कॉमेडी वीडियोस बना रहे हैं तो ऑब्वियसली सब हंसते हैं उसके अंदर, अगर हंसोगे नहीं तो फिर इफेक्ट नहीं आएगा, तो हंसते रहते हैं हम लोग। अभी कहीं सीरियस शूट चल रहा है तो हमें सीरियस भी होना पड़ता है। अब जैसे बच्चे हैं, बच्चों की तो 24/7 मस्ती चलनी है, उनको तो आप कैसे सीरियस कर लोगे? फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हमें सीरियस भी होना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ता है, बेटा दिस इज वर्क, हर समय मस्ती नहीं चल सकती। तो इट इज लाइक ऑल थिंग्स गो हैंड इन हैंड। तो बच्चों के साथ जो फैमिली टाइम है वो तो है ही, मतलब दे आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं घर से जैसे तैयार होकर बाहर निकलता हूँ ना तो माय सन कम, पापा कहाँ जा रहे हो? तो भैया मुझे थोड़ी देर के लिए तो जाने दो, कहीं पे कुछ काम है मुझे, वो जाने ही नहीं देता है। अच्छा कितनी देर में आओगे? फिर मैं बाहर चला तो फोन आ जाएगा, पापा आप अभी तक आए नहीं हो। तो मतलब कंप्लीटली वो इतना ज्यादा वी आर क्लोज निटेड कि उनको हर चीज पता है मेरी, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे भी उनकी पता है वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है, कहाँ जा रहे हैं। एंड नो आई रियली लव दिस बिकॉज अब बच्चे आपके पास आ रहे हैं, पापा आई वांट टू डू दिस, एंड वी टॉक टू ईच अदर, वी डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स विद ईच अदर बिकॉज वी आर ऑलवेज टुगेदर। तो जो एक गैप हो जाता है बच्चों और पेरेंट्स में, वो भी इस चीज से सॉल्व हो रहा है जो हम कंटेंट क्रिएट एक साथ कर रहे हैं, विच वी कॉल इट फैमिली टाइम। पर ठीक है, अभी धीरे धीरे उनको भी पता चलेगा तो और ज्यादा मजा आएगा जैसे जैसे बड़े होंगे। Bilkul, of course. I love it. I love it. Whether it's Shania and whether it's Ananya, whether it's Sian, I think they're all doing fabulously with you. And I wish them all the best on their own personal journeys. Ramneek ji, I have a bit of a personal question. आपने कहा इसके बारे में some time ago that you have a passion for it. But जब इंसान कोई path पर निकल पड़ता है, आगे चलकर suddenly वो realize करता है कि why do I do something? So my question to you is not when you started, it's while you were doing it. Now, when you ask yourself, why is it you do what you do? Have you discovered that reason? And is there a different reason now outside of the excitement and the passion? Yes, yes. Very right you are कि when you start you don't know why you are starting, it happened, nobody plans। अब बिल गेट्स ने भी शुरू किया होगा, उसने थोड़ी सोचा होगा that I'll be the richest person, या शाहरुख खान है, anybody rather, कि अब वो तो पहुंच जाता है इंसान, you just work hard, you follow your passion, तो हम पहुंच गए। But you're right कि अब जो रीजन निकल के आ रहा है वो स्टार्ट हुआ था जस्ट फॉर फन। एंड आई टोल्ड यू दैट आई वांटेड टू मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ, आई स्टार्टेड दैट बिजनेस अपनी फैमिली से हटके। आई स्टार्टेड दिस मोबाइल बिजनेस टू क्रिएट अ नेम, आई स्टार्टेड दिस वॉफल चेन टू क्रिएट अ नेम। तो वो दैट वाज द बैक ऑफ द माइंड, तो यही चल रहा था कि यार आई वांट टू डू समथिंग ऑन माय ओन टू मेक इट बिग एंड टू फील दैट आई हैव क्रिएटेड इट। अब वो उसके लिए क्या हुआ कि देन आई ट्राइड दीज थिंग्स, बट वो मटेरियलाइज थोड़ा थोड़ा होता दैट इट वुड हैव टेकन टाइम। बट फिर मेरे को जिस चीज में मजा नहीं आ रहा, आई डोंट डू दैट। तो मैं आप सबको यही बोलता हूँ कि यार जब तक आप जो काम कर रहे हो अगर उसमें आप इंजॉय Yes. नहीं कर रहे हो तो उसको मत करो भाई, यू विल नॉट रीच एनीवेयर। आप सक्सेस नहीं हो सकते, आप बस जबरदस्ती अपना टाइम पास कर रहे हो एंड यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड एवरी डे एंड योर फ्रस्ट्रेशन विल इंक्रीज, वन डे यू विल जस्ट लीव इट एंड गो समवेयर। तो बेटर यही है कि वो करो जिसमें आपको मजा आए। दैट इज व्हाट आई डिड कि यार इसके अंदर से हम वो करेंगे एंड पैशन तो वो तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली यही था कि एक अपना नाम बनाना है। और बाय गॉड्स ग्रेस तो ब्रांड बनाने के चक्कर में हम लगे हुए थे और अपना नाम ही ब्रांड बन गया। एंड पीपल आर लविंग अस एंड सबसे ज्यादा मोटिवेशन आती है जब पीपल कम टू यू। मतलब आई रियली लव दिस थिंग है। मतलब हमारे पास हमने अपना मर्चेंडाइज बनवाया हुआ है, वी गिव लॉट ऑफ गिफ्ट टू पीपल, जो भी हमसे मिलता है आके प्यार से। एंड अगर हमारे पास उस टाइम पे पड़ा है तो वी डेफिनेटली गिव लॉट ऑफ गिफ्ट्स टू ऑल आर पीपल हु लव अस। इससे ज्यादा मोटिवेशन नहीं है। मतलब आपको मैं बता नहीं सकता कि हाउ गुड वी फील जब इतना आके लोग प्यार देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, बिकॉज फैमिलीज है, अच्छा कंटेंट हम बनाते हैं, कुछ हमारा वल्गैरिटी नहीं है, सब में मॉरल्स आते हैं, हम हंसाते हैं लोगों को, तो इतना ज्यादा लोग प्यार करते हैं। इससे बड़ी मोटिवेशन और जो है ना पैशन, मजा। Amazing. I'm so excited to ask you our next question, which is what is next for Ramneek Singh and the Singh family? Any dreams? Any aspirations? It's very difficult, yeah. Currently, we frankly speaking,
वी आर द पर्सन्स हु ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट, बट येस बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ता ही है। अभी इसके अंदर तो छोटे छोटे टारगेट्स रहते हैं, अभी 28 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, ये सब तो चलता ही रहेगा। एवरी डे वी आर गेनिंग अबाउट 40,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब कंबाइंड ऑल आवर चैनल्स। तो वो तो चलो हर महीने 1 मिलियन, 1.5 मिलियन बढ़ जाता है, वो सब चलता रहेगा। बट येस, आवर एम इज व्हाट नेक्स्ट इज टू लिव अ लॉट मोर सेटिस्फाइड लाइफ, कंटेंट लाइफ। तो इसी में जो है उसको एंजॉय करो। ये नहीं कि जो है उसको आप छोड़ के सब कुछ आप आगे कहीं और पहुंचने में अपनी एनर्जीज लगा दो, तो जो है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। और आगे भागने में अब मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, वो सब में हम बिलीव नहीं करते। मैं बच्चों को भी यही सिखाता हूँ, जो है उसमें खुश रहो। 90%, 5-10% जरूर अपने दिमाग में रखो कि ठीक है यार, चलो ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। बट ये नहीं है कि वो करने के चक्कर में जो आपके पास है, जो सक्सेस है, जो लोगों का प्यार है, उसको छोड़ के हम कहीं भागने में लगे। आई डोंट पर्सनली बिलीव दैट, बट येस, मे बी 4-5 years डाउन द लाइन अगर मन किया तो कोई सीरीज कर देंगे, या कोई नेटफ्लिक्स या कुछ भी, या कोई टीवी सीरियल कर देंगे। बट वो सब करेंगे जब करेंगे। अभी वी आर रियली एंजॉइंग दिस व्हाट वी हैव, एंड धीरे धीरे इसी को ही ग्रो करना है। एंड बच्चों को और इंजॉय करवाना है, फैमिली को और इंजॉय करवाना है। दैट इज व्हाट आवर मोटो इज ऑफ लाइफ। मैं जब आई वाज ग्रोइंग अप, आई रिमेंबर इंटरव्यूज ऑफ मिलियनेयर्स एंड अक्सर लोग उन्हीं को इंटरव्यू करते थे जो काफी रिच और सक्सेसफुल होते थे, और वो पैसों के करोड़पति होते थे। पैसों के साथ साथ आई थिंक लोगों के दिलों के करोड़पति होना ये एक खास ही बात होती है। एंड रमनीक सिंह, आई वुड से यू आर अ करोड़पति ऑफ पीपल एंड पीपल्स हार्ट्स। सो एज आई कम टू द क्लोज ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन विद यू, आई वांट टू टेक यू बैक टू द थीम कि आखिरकार मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों लोगों से बात कर रही हूँ, क्रिएटर्स से क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि अपने लिए, अपनों के लिए, ये ट्रूली, ये जो मोटो है हमारे इस पॉडकास्ट का, उसे आप लेकर जीते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे जब हम अपने लिए कुछ करें और अपनों के लिए कुछ करें? हाउ डज दैट मेक द क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर? हमें बताइए। We are influencing people's lives in certain way. So इसमें I would like to add, अपने लिए और अपनों के लिए what we are following is, अपने लिए मैं इसलिए बोलूंगा बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट फॉर एवरी पर्सन कि उसकी हैप्पीनेस खुद की, मतलब अपने लिए आप करो। और अगर आप किसी बंदे को वही चीज दे सकते हो जो आपके पास होगी, मतलब अगर आपके पास खुशियां हैं तो आप खुशियां बांटोगे। अगर आप परेशान हो, आपको दर्द हो रही है, दुख में हो आप, तो आप खुशियां नहीं बांट सकते, आप किसी को खुशी नहीं दे सकते, बिकॉज आप खुद ही परेशान हो, आप खुद ही फेलियर हो। तो कहने का मतलब है, आप सबसे पहले अपने आप को खुश रखो, अपने आप को हेल्दी रखो। एंड वंस यू आर गुड, then you will spread positivity in your family, in your neighborhood, in your society, everywhere. बट सबसे पहले अपना ध्यान रखो, अपनी टेक केयर करो, एंड इफ यू आर हैप्पी देन यू विल सी पॉजिटिविटी एवरीवेयर। अदरवाइज आप हर चीज में नेगेटिविटी देखोगे, मैं भी दुखी हूँ, सारी दुनिया दुखी है, हे भगवान मेरा क्या होगा। दैट इज व्हाट आई ट्राई टू फॉलो एंड गिव पीपल की यार आप अपना ध्यान बिल्कुल। रखो, यू बी हैप्पी। It's wonderful. I had such a great time talking to you, Mr. Ramneek Singh. I want to wish you and the Singh family a lot of love, and please हमें ऐसे ही हंसाते रहिएगा, because सबसे ज्यादा तो आपके वीडियोस देखकर लोग मुस्कुराते हैं, and you have been the bringer of smiles. Please give all of your family members from all of us a big hug. Like सबसे पहले तो आप ये कीजिएगा, and thank you so much आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट पर। उम्मीद है आपको भी उतना ही अच्छा लगा हमसे बात करके जितना हमें लगा। नहीं सच्ची में, it was a really nice talking to you, and I really loved the way you talk and your smile, and and about this whole concept what we are talking about, it will give very good message, and bring, and people will get inspired, and because we have started from scratch and we've reached here. So I would suggest and promote everyone to be happy in their life and spread happiness. That is so wonderful. Thank you and God bless you and the Singh family. Here's looking to lots more videos and lots more smiles from you. Take care, Mr. Singh. Thank you. Thank you. So that was the story of Ramneek Singh and his family. और क्या कहानी थी यार। मतलब बंदा स्टार्ट करते हैं एक बड़े से फैमिली बिजनेस के साथ, लेकिन फिर अपनी खुद की अलग पहचान बनाते हैं, अपनी फैमिली के साथ एक अलग आइडेंटिटी बनाते हैं। Isn't that great? And it was so good to listen to him and to learn from his learnings. Always a reminder of how when you do something for yourself, you also have the chance to do it for those who you love. I keep thinking of how he said, I'm so proud of my kids. He also mentioned that how his kids were part of the basketball teams in their schools. छू गई ये बात दिल को.
and I'm sure कि आपको भी touch कर गई होगी. And that is the essence of this entire podcast. These are stories of passion, not just what you do, but also being passionate for those around you and making their lives beautiful. We live our own life, but we also live for others. And this is exactly what the SBI Life अपने लिए अपनों के लिए thought is all about. So see you on the next episode. Until then, this is me, Rohini, signing out. This podcast is brought to you by SBI Life Insurance Company Limited. For more details, please log on to sbilife.co.in/podcasts. IRDAI registration number 111.